Hi everyone, welcome to my today's video. If you have made up your mind to buy a property, please do not miss out on any of the points that I am going to discuss in this video. Question 1 arises, should you even think of buying property at this time? My answer is yes, definitely you should think buying a property at this time. Provided आपके पास एक stock का portfolio है which is kept aside and then you are going to invest in the property market. नाउ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लाख रुपए का स्टॉक का पोर्टफोलियो है या 5 लाख रुपए का स्टॉक का पोर्टफोलियो है एंड प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं 2 करोड़ की. क्वेश्चन 2, व्हेन टू बाय अ प्रॉपर्टी? ओनली एंड ओनली व्हेन यू गेट अ गुड डील. जिसका मतलब है अगर किसी को पैसे की जरूरत है, उसका मनी जो है वो प्रॉपर्टी में स्टक है एंड ही इज सेलिंग दैट प्रॉपर्टी. दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ इन्वेस्टिंग. इसमें अगर थोड़ा सा लोन भी लेना पड़ता है तो ले लो. पॉइंट नंबर 2, यू शुड बाय अ प्रॉपर्टी जिसमें आपको रेंट इमीडिएटली प्रॉपर्टी खरीदने के तुरंत बाद मिल रहा है एंड योर मंथली रेंट शुड बी इक्वल टू योर EMI. This way your property will become free in some time. Now the problem here is that you have to choose your location very wisely, which means अगर हम दिल्ली की बात करें या गुड़गांव की बात करें, जितना यहाँ पे रेंटल यील्ड है it's just approximately 3%. 3% रेंटल यील्ड कंसिडर कर लिया, 3% पास्ट रिटर्न्स को देख करके हमने कंसिडर किया अप्रिसिएशन. नाउ 3 + 3 = 6. Total return you are getting on a property invested by you is 6%. Now you are smart enough to judge whether you should invest in property or some other asset class. Scenario 2. So I am earning 2 lakhs a month. My wife is earning 2 lakhs a month. Total 4 lakhs a month. We decided एक property लेते हैं लोन पे, जिसमें household expenses would be taken care of by my salary. EMI would be taken care of from my wife's salary. In this scenario, should I be buying a property? My answer is no. In this scenario, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो आएगा ही. अगर किसी भी एक की जॉब जाती है, साथ में you will have to bear the mental stress as well. Few key rules to buy a property are: you should be in a state of making 40% as a down payment. Your loan tenure should not exceed 20 years. ये सबको पता है क्या है. And I keep on saying the third point: your monthly EMI should not exceed 30% of your monthly income. Fourth point is total family का income मिला करके property should not exceed 5x. Now after listening to all this, आप सोच रहे होगे कि फिर तो ये सब सुनने के बाद ले चुके हम घर, आ गया मेरा घर. Guys, I am just telling you these sensible facts. घर लेना है, आप 50x लो अपनी मंथली इनकम का या फैमिली की इनकम का. You can go ahead and over leverage yourself, but you should not do it idly. Next question arises: घर ले लिया, should you get your house constructed by yourself या फिर बिल्डर से कराना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक है, 25 से 30% खाएगा बिल्डर. That's his commission. So खाएगा is a wrong word, but that's his commission. Now आपने अगर खुद कंस्ट्रक्ट कराना है, 25 से 30% बचाना है, टाइम है, ऑफिस से फुर्सत है, करा लो. नहीं करा सकते, get it done by a builder. As simple as that. Now talking about the case wherein you are planning to buy a flat in an apartment. First of all, you should visit the apartment. The apartment should be 50% or more constructed. सिर्फ इस बेसिस पे फ्लैट ना लो कि बिल्डर इज रेरा रजिस्टर्ड, क्वालिटी चेक नहीं करी, कंस्ट्रक्शन चेक नहीं किया. यू शुड गेट योर दी क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन चेक इमीडिएटली बिफोर बाइंग द हाउस. आप कैसे करोगे, मैं कैसे करूंगा, हमें नहीं पता. सो इन दैट केस आई एम टेलिंग यू अ वे, गो एंड गेट अ कॉन्ट्रैक्टर. एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करो, 10 से 15 हजार रुपए लेगा एक दिन का. नेगोशिएट करो, जितने में फाइनल होता है विच इज फाइन. वो आपको एटलीस्ट बता देगा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दिस अपार्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी टू बाय फॉर इन्वेस्टमेंट? रहने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी लो, अच्छी लो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, विच इज फाइन. रहना है, यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी, दैट्स नॉट योर इन्वेस्टमेंट. इन फ्यूचर में बेचते भी हो तो बड़े घर पे जाओगे तो वो भी फिर इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगा. बट फॉर इन्वेस्टमेंट डू नॉट गो फॉर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी. बेचने में मुश्किल होती है एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, खरीदने में मुश्किल होती है. अब मेरा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन रिटर्न्स आर लेस, व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, इन रियल एस्टेट? I'll tell you, it helps you save your tax, it helps you preserve your wealth. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है because when you keep your money in the bank, it degrows due to inflation. इसका वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा, how inflation is eating your money. आप सुन के बिल्कुल शॉक पे आ जाओगे अगर आपको नहीं है इसके बारे में नॉलेज. But if in case you have liked my video, please do press the like button so that it can reach out to other investors too. And thank you so much for watching today. Take very good care of yourself. Thank you.